Let's begin the meeting with today's open discussion. Why we need to have a professional in the project? We are open for discussion. Am I audible? Yeah, ma'am, you are audible. So yes, can we have your views? Gaurav Gupta, can we have your view? Yes, definitely. Good evening, everyone. And in a long time, I've joined an NPC meeting, but it's good to be back today. So, well, to begin with, the importance of having a professional in any kind of project is to bring a streamlining to the overall set of activities. Leaving the client to their own devices, probably they would try to cast the ceiling before they cast the pillars. So it's there to give a proper direction, proper channel, and to give a proper estimate of the time, cost, quality as well to the end client, and to be a responsible person for the overall project delivery. I mean, losses and other things can run into millions. Of course, I mean, without having a professional on board, the project might not even get completed on time. So, I mean, the importance of a professional in the project cannot be misunderstood. Great. We have Mayur Mangalji. Mayur Mangalji, your view? I'm absolutely fine. Sir, your view? In any Karishma ji, your view? So, according to me, why we need to have a professional in the project? Of course, we need a professional in a project. Only then we can head it in a right direction. As rightly said by the person we just heard, that they would definitely cast the linter before the pillars. So yes, we definitely need a professional who can give a right direction to the whole project. Great. Ritu ji, can we have your views? Yeah, I will add one thing in that कि इसमें एक तो टाइम सेविंग भी होती है अगर प्रोफेशनलिज्म आएगा, डिसिप्लिन तरीके से काम होगा और सही काम होगा, सही डायरेक्शन में काम होगा और अल्टीमेटली टाइम सेविंग तो होगा ही होगा. और अगर व्हेन वी मेक अ बजट बिफोर टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, मतलब वो भी एक प्रोफेशनलिज्म का पार्ट है. उससे क्लाइंट को भी पता होगा कि मेरा क्या एक्सपेंडिचर्स आने वाले हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में. प्लस माइनस 10-15% चलता है. तो ये दो पॉइंट जो हैं ये मेन मैं समझती हूँ कि प्रोफेशनलिज्म होने से ये इन चीजों का फायदा रहता है. Very well said. Can we have more views? Professionals, can I say something? Yes. Actually, the topic discussion is बहुत important. खास करके we are all the professionals. So, as a layman, everyone is an architect, everyone is an interior designer. जिससे भी पूछो घर में, यार मैं तो यहाँ पे लगा दिया हूँ, मैं वहां पे लगा दिया, लेकिन उसमें एक्चुअली जो एस्थेटिक लुक है और सारी चीजें जो निकल के आती है वो किसी आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर सब्जेक्ट टू दी. आर्किटेक्ट है तो अपनी बिल्डिंग को मटेरियल्स, बिल्डिंग को जो व्यू दे रहे हैं, और इंटीरियर डिजाइनर का जो काम जो होता है वो एक्चुअल में शेप और उसकी डिजाइनिंग जो निखर के आती है जब हम किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं. मैं अपना दिमाग में लगा सकता हूँ कि यहाँ पे ग्रीन रंग होना चाहिए, यहाँ पे फ्लावर्स होनी चाहिए, यहाँ पे कुछ और भी ट्यूबलाइट होनी चाहिए, लेकिन जो क्रिएट करता है प्रोफेशनल्स वो एक आम आदमी. So I'd like to second you as well. We as in architects and interior designers, we design space. So we design space, and space has to have aesthetics that's provided by the interior designers. So yes, professionals are very important.
Great. Can we have more views? Anshita ji, can we have your view? Safi Ashmi ji, can we have your view? Yes, Mayuri. Yeah, Mayur ji, can we have your view? I think whenever we have a professional, the professional provides a leadership and a vision to the layman that do not have a proper knowledge about the project, what they actually have to do. And the main part that professional can do is whenever there's a construction on or a very important project, lakhs and lakhs of rupees involved in the project, there are many roadblocks also that come, which can only be removed by a professional. And there's a professional actually ensures a clear line of accountability towards the project, which I don't think client or clients can do that. Yeah. Anya? Thank you all. Now it's time to start our internal meeting. Ladies and gentlemen, please bring club to order. I now hand over to club captain to do the honor. Supreet, can you read the... Yashendra Shinaji from Sai Interior, Delhi. He is supplier and turnkey interior contractor of all type of interior, executor and acoustic items. His total experience in building material industry is more than 20 years and 3 years in current profession. His hobby is kinetics and digital marketing. Since the beginning of Club NPC, he had been actively associated and also handling social media for the Delhi region. Siraji. Sir, you're mute. Sinaji, you're on mute. Thank you, Yogesh ji. And I would like to brief you about a few details about how we should, what precautions we should do when we install wooden floorings. Next, please. Next slide, please. Yes. Any laminated flooring, it has got a property of expansion and contraction. Like for example, if we are installing any laminated flooring, it expands lengthwise and widthwise. So always we need to have a space at where it ends up with the wall. Next slide, please. The first step, what we should do is the floor should be hard. It should be 0 mercury level and free from any moisture. And step 2 is before installation, the plank should be kept open in the room to absorb sufficient moisture. Next, we should take the precaution like plank should be laid on a 200 micron polythene sheet followed by a foam of 2 mm thick. The next precaution we should take is approximately 8 to 10 mm gap should be left there where the flooring plank ends, which I have discussed earlier in the previous slides. And next is like we should always use ready-made skirting. And for a bigger span, say for example, which is more than 500 square feet, we should always use profile at a span of 20 to 25 feet. That's all for that was a very short briefing about what precautions we should be taking for installation of wooden floorings. So now I'm just saying something like that. Okay, it was a long-awaited demand for all members that the members should be given a chance to talk about their business. So we are starting a 6-minute presentation. Where the member will be given a chance to talk about their one specific project, all the challenges they faced and how they overcame that. But this will learn from the experience. So next week we have the Zainab and Anil.
And so for this week's, we are just going to introduce like Dr. Kanhaiya. So Kanhaiya ji, Dr. Kanhaiya, can you just speak, say something about Yogesh ji? Can you read bio of Kanhaiya ji? Yeah. I think Supreet, can you read it? Supreet, is you there? Supreet? Yes, I'm here. Yeah, Yeah. please. Guys, this is the first time we are doing it. So sorry for a lot of miscommunications are there this time. So we're trying to improvise, and over a period of weeks, we'll be more professional, we'll be more understanding with each other. Okay. Yeah, Supreet. Yeah. Sorry for Go taking ahead. so much time. So let me just present you Dr. Kanhaiya Gehrola, who is the world's one and only Vedic tree astrologer from Mangalya Dham. He belongs to Devbhumi, Uttarakhand, and comes from royal priest family of Tehri Maharaj. He did his education in Sanskrit and PhD in astrology from Garhwal University. His wife works for Doordarshan, and around 4.8 months, he has a daughter who's around 5 years, Agrani. So Dr. Kanhaiya has an experience of 20 years in the field of Vedic astrology and over 7 years in Vedic tree astrology. He suggests trees and plants as astrological remedies instead of difficult remedies. He suggests plantation in holistic way as per astrology, Vastu, and Feng Shui calculations. He specialized in making a Vedic garden, Vedic landscaping, and religious gardens like Navgraha Vatika, Nakshatra Vatika, Ashok Vatika, Tulsivan, Mahavir Vatika, etc. A new way of plantation which will help people to live happy and healthy life with religious values. May the divine tree bless you. Thank you. Should I start? Yeah. Good evening, everyone. So you heard the introduction, and this is my presentation. So I just said that by profession, I am an astrologer, and I did some research on how we can help people through the nature, like astrology. Just hold a moment. So sorry, guys. So I did research on various things, like I read so many books and all, and then I got to know that plants are the more effective and more positive thing on earth who can help in any manner. So then I start doing this concept, and then I start this Vedic tree astrology, and where I do these kind of things, like in astrology, how we can. In astrology, we suggest tree and plants. How we can, gift a plant as per the astrology. We provide plants on rent, and we create Vedic Vatikas. Like Vatikas as per your religion, whether you are a Hindu, Muslim, Sikh, Isai, because हर किसी के religion में plants का एक बहुत अच्छा impact है. तो हम उस सब को कैलकुलेट करके हम लोगों को बताते हैं कि आपको किस तरीके की वाटिकाएं लगानी चाहिए, किस तरीके से प्लांटेशन करनी चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Yeah, so we created a few like these are, there are 3 maps. The holistic zone is like somebody asked me that we are planning to put some plants at our premises. So इन्होंने अपने घर में प्लांट्स रखने थे. So हम लोगों ने इनके घर का एक नक्शा बनाया, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्शंस भी हम लोगों ने इसमें पॉइंट आउट करी हैं. तो किस डायरेक्शन में किस कलर के पॉट पे किस टाइप का प्लांट आना चाहिए,
हमने इस चीज पे वर्कआउट किया विच इज बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एंड लिटिल बिट फेंग शुई, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर एक चीज का अपना इम्पैक्ट होता है, हर एक चीज की अपनी एक एनर्जी होती है, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। एज पर द वास्तु, अगर आप किसी भी जोन में कोई भी नेगेटिव या कोई भी एंटी कलर रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग बस उनको सिर्फ यही गाइड करते हैं कि भैया अगर आपने जिन जिन डायरेक्शंस में प्लांट रखने हैं उसमें आप किस टाइप के प्लांट्स रखें, किस कलर के पॉट्स को यूज करें, जिससे आपके घर की जो एनर्जी वो बैलेंस रहे। बीच में जो लैंडस्केपिंग है, ये हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया था वैशाली में। यहाँ पर हम लोगों ने प्लांटेशन करी थी एज पर द वास्तु, किस डायरेक्शन में किस तरीके के प्लांट्स आने चाहिए, लंबे वाले, छोटे वाले, माउंटेन्स कहाँ आने चाहिए, फाउंटेन्स किस डायरेक्शन में होने चाहिए, वो सारी चीजों को हमने यहाँ पर इंडिकेट किया। एंड द थर्ड वन इज, हम लोगों ने डॉक्टर किरण बेदी की एक ऑर्गेनाइजेशन है नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, जिसके साथ हम लोगों ने एक CSR एक्टिविटी के अंडर हमने एक प्रोजेक्ट किया था, जिसमें हमने सहजावास गुड़गांव में एक क्रिमिनेशन ग्राउंड को एज पर द हिंदू थीम उसमें हमने प्लांट्स लगाए। ये एक ऐसा एक हम लोगों ने एक नई चीज को किया कि यहाँ पर जितने भी प्लांट्स जो लगे थे वो हिंदू माइथोलॉजी से कनेक्टेड थे। एट द टाइम ऑफ डेथ, या कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी पूजा करने से या जिनको पानी देने से या जिनको लगाने से आप अपने इंसिस्टर्स जो आपके नहीं हैं आप उनके लिए बेनिफिट कर सकते हैं। तो हमने इन चीज़ों को कैलकुलेट करके हमने यहाँ पर ये प्लांट्स लगाए थे, इन प्लांट्स को लगाया गया था। एंड बिलीव मी, वहाँ के लोगों को जब इस बारे में समझाया तो उन लोगों ने इन प्लांट्स को बहुत मन से लगाने के साथ साथ उनकी आज भी वो केयर कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है नॉट ओनली फॉर द वास्तु एंड ऑल, बट ये कहीं ना कहीं आपको इमोशनली स्पिरिचुअली भी कनेक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दैट्स अ रेमेडियल पार्ट। आई थिंक इसको आप आगे कर दीजिए योगेश जी। ये मेरे यूएस के क्लाइंट थे, उनको मैंने रेमेडी बताई थी। सो ये हमने एक नवग्रह वाटिका बनाई थी गढ़ी बाजितपुर हरियाणा के अंदर। ये एक जगह है, सोना रोड पे पड़ती है। तो ये बेसिकली एक एकड़ की लैंड थी जहां पर लोग हमेशा यहाँ पर ये नवज्योति इंडिया फाउंडेशन साफ करती थी, लोग यहाँ पर गंद डाल देते थे। फिर यहाँ पर इन्होंने देन दे हर्ड अबाउट मी कि कोई वैदिक प्लांटेशन का हम लोग काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। हम लोगों ने यहाँ पर गांव वालों के साथ मिलके हमने ये प्लांटेशन करी, उनके साथ बैठ के हमने प्लांट्स की वहां पर पूजा करी और उन लोगों को ये विश्वास दिलाया, उन लोगों को ये बताया कि ये सिर्फ प्लांट्स नहीं है, इनके अंदर देवी देवताओं का वास है। और जैसे हम लोग बचपन से देखते हैं नीम, तुलसी, बड़, आंवला, हम लोग इनकी पूजा भी करते आते हैं। तुलसी की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। तो वहां पर हमने जब उन लोगों के सामने ये पूजा करके उनके साथ ये प्लांट करवाए, तो आज देखिए ये मैंने मार्च 2017 में मैंने ये प्रोजेक्ट किया था और आज देखिए प्लांट्स कितने बड़े हो गए हैं। तो वहां के ही जो लोकल लोग जो पहले वहां गंद मचाते थे, आज वो लोग उसको एक माइथोलॉजी के कनेक्ट करके, रिलीजन से कनेक्ट करके उसको उस जगह को साफ सुथरा करते हैं, वहां पर उसकी टेक केयर करते हैं। आप देखेंगे इसमें लोग भी हैं, वहां पर टेक केयर भी करते हैं। और वहां पर उन्होंने एक बाकायदा एक हमने नेम प्लेट भी लगा रखी है कि कौन कौन से प्लांट्स हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड करिएगा सर योगेश जी। इसमें नेम प्लेट आप देखेंगे, फर्स्ट फोटो में नेम प्लेट भी लिखी हुई है कि कौन कौन से प्लांट्स है, किस किस तरीके के प्लांट्स हैं। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि प्लांट्स किस तरीके से आपकी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं बाय जस्ट पुटिंग देम इन अ राइट मैनर। आप अपने घर में किस तरीके से रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, क्या सही उसका तरीका है। देखिए जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि अगर हम घर बना रहे थे, लेट्स कंसीडर वास्तु ऑल्सो, तो दैट्स द सेम थिंग कि जब आप घर पे प्लांट्स रख रहे हैं या प्लांटेशन करा रहे हैं, तो थोड़ा सा इधर के बदले इधर कर देंगे, इधर के बदले इधर करने से आप अपने घर की एनर्जी को और इंक्रीज कर सकते हैं। दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, so I think that's all about from my side. Thank you very much, Yogesh ji, for giving me a chance. Any question and answer? Anybody has any question for Kanhaiya Lal ji? Yes, Kanhaiya ji. I'm happy to answer. Anybody? Kanhaiya ji, I wanted to ask something. Yes, sir.
Sir, how do you associate with architects and designer? मतलब what is the process of your association, and at what stage of the project do you come in the picture? Thank you. सबसे पहले तो सर इसमें हम लोग आर्किटेक्ट से यही बात करते हैं कि वो प्लांटेशन कहाँ पर और किस तरीके से करवाना चाहते हैं, फर्स्ट. सेकंड थिंग, हम इसमें ये जरूर कंसीडर करते हैं कि जो आपका एंड क्लाइंट है वो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, बिकॉज हमारा ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी को या माइथोलॉजी को इसके अंदर डालें. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें या नहीं लेना चाहें. बट हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनको एक ऐसी चीज प्रोवाइड करके दें जो उनके उस एरिया को पॉजिटिव एनर्जी करे. बट इसमें मोस्ट प्रॉब्ली आई वुड से कि जब प्रोजेक्ट खत्म होने वाला होता है उसी टाइम पे हम लोग प्लांटेशन को करते हैं, क्योंकि बिटवीन द अगर हम इस प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्लांट्स को हार्म करता है. इसलिए जब आपका प्रोजेक्ट खत्म होने वाला होता है तो वहां पर हम लोग पिक्चर में आते हैं, या फिर जब ड्राइंग बन रही होती है उस समय पे हम लोग इस चीज को कंसीडर करते हैं कि भैया अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो आपको इसी तरीके से करनी चाहिए, अगर वो किसी लैंड पे कर रहे हैं तो. लेकिन अगर आप पॉट्स वगैरह रखना चाह रहे हैं वो हम बाद में भी उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं. जी सर. Sir, one thing more. Sir, as we hire landscape architects as consultants, कई बार हमारे जो projects आते हैं उसमें हम landscape architects को consultant hire करते हैं. तो and you are not a landscape architect. So basically आपका जो process of association है वो आप कैसे pitch in करते हैं, मतलब within the projects? सर इसमें जो लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट है उसके साथ बैठ के हमें थोड़ा सा इसमें वर्कआउट करना पड़ता है. पहले तो मुझे इसमें आर्किटेक्ट के लैंडस्केपिंग जो आर्किटेक्ट है उसके साथ ही बैठ के इन सारी चीज़ों पे बात करनी पड़ती है. बट जिन आर्किटेक्ट से मैं कनेक्टेड हूँ वो मेरे कॉन्सेप्ट को ओनर को बताते हैं कि इस तरीके का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर हम इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर हम प्लांटेशन करते हैं तो फिर हम अपने इस एरिया के या अपने एनर्जी को और इंक्रीज करते हैं. फिर वो अपने लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट से बात करते हैं कि हम इस तरीके से करना चाह रहे हैं प्लांटेशन एज पर द वास्तु. कई बार ऐसा होता है कि लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट से इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके क्लाइंट से बोलते हैं यार ये प्लांट यहाँ नहीं लगाना, हमारे वास्तु कंसल्टेंट ने मना किया है. तो उसकी छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं कि उस तरह के उस जगह पे अगर आप कोई छोटे मोटे प्लांट्स लगाएं तो आप उसको रेमेडियल भी एक तरीके से आप करके उस जगह के एरिया को ठीक कर सकते हैं. तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि हम क्लाइंट को अप्रोच करें. अगर क्लाइंट को अप्रोच करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट को कांटेक्ट करते हैं. और वैसे हमारे इन हाउस लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट्स भी हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोगों के साथ प्रोजेक्ट करते हैं. वैसे वी आर वेरी फ्रेंडली. जिस तरीके से हम लोग क्योंकि लेट्स से कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट्स को करना ज़रूरी है, तो उसके लिए वहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रेमेडी का काम करते हैं, तो हम उनको यूज करके आपस में एक कोलैबोरेशन कर लेते हैं. Okay, sir, one question more, final question. So just हमारे NPC group में sorry, हमारे NPC group में there are a lot of young interior designers and architects, and हमारे scale of projects सब लोगों के एक अलग अलग लेवल पे चलते हैं. कोई इंटीरियर करता है 1 BHK अपार्टमेंट में जहाँ पे उसके पास सिर्फ आई थिंक एक बालकनी होती है जहाँ पे वो लैंडस्केपिंग का या पॉटेड प्लांट्स का कुछ करना चाहते हैं. आजकल क्लाइंट्स बालकनीज में काफी अच्छा डिजाइन भी चाहते हैं. एंड देन देयर आर सर्टेन आर्किटेक्ट्स हमारे ग्रुप में जो बड़े बड़े एकर्स में हेक्टेयर्स में साइट करते हैं. तो आपका स्कोप ऑफ वर्क सर डज दिस स्टार्ट विद अ बालकनी आल्सो? एंड सर मैं हर तरीके के प्रोजेक्ट करता हूं क्योंकि मेरी टीम उसी तरीके से है. मैं छोटे भी करता हूं, मैं बड़े भी करता हूं. हमने जैसे एक प्रोजेक्ट किया था Cloud9 वैशाली में ऋषभ वालों का, वो भी हमने किया है. छोटी छोटी बालकनीज भी हमने करी हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है अगर हम किसी एक पैमाने पे जाएं छोटा या बड़ा तो हम अपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाएंगे. इसलिए हम हर तरीके के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, वेदर इनसाइड, आउटसाइड, इंडोर, आउटडोर, स्मॉलर वन और बिगर वन, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वी आर रेडी टू डू anything which is related with plants. I can do. So thank plants. Thank you so much, Dr. Kanaiya. Thank you very much. Thank you. Great. Thanks.